after the Diwali vacation. From today, we are generally making our science videos. So, video number 1, it's class 9th, science 1, chapter name is reflection of light. After the Diwali vacation, we are starting our new edition of online video lecture series. My name is Krishna Deshmukh from Rashtramata Jizav English School, Chikli. Today, we are talking about the reflection of light. First of all, what is light? A definition of the light is very simple. Light is electromagnetic radiation. Light is electromagnetic radiation. In the previous standards, we are generally talking about the light, reflection of light and types of reflection of light as well as laws of reflection in the 8th standard. In this year, we are talking about the reflection of light as well as we are talking about the mirror, types of mirrors, plane mirrors as well as spherical mirrors, plane mirror and laws of the plane mirror. After that, we are talking on the spherical mirror. So, all the phenomena of the lights we are talking in these videos. This video is related to class 9 and it is very important video for class 10th also because it is the primary knowledge where you can get the reflection of light. So this video is also important for next year. So learn these things. Reflection of light is very simple phenomena. In this chapter, we are making certain diagrams, different laws. So these videos are very interesting. So that is why, first of all, we are starting in our books. So in the books, page number 115, your chapter number 11, it's called as reflection of light. So first, there is a question. It's called as what is light? So definition of light is here. Light is electromagnetic radiation. Very simple definition. What is light? Light is electromagnetic radiation. Second question is, what is meant by reflection of light? Which are the different types of reflection? In the previous standards, we are talking about reflection of light. When the light rays comes and hits the certain object and get back, it is called as reflection of light. Very simple definition, you are memorizing in the previous standards. Which are the different types of reflection? Different types of reflection you can learn in the previous standard, that is reflections are regular reflection on smooth surface, irregular reflection on rough surface. So regular reflection and irregular reflection are two types of reflection. So page number 115, first paragraph. Light is an agent which gives us information about what is happening in our surroundings. We can enjoy various wonders of nature like sunrise, sunset, rainbow only because of there is light. So light is very important things because every visible things we can see because of the light. If there is no light, we cannot see anything. अगर लाइट नहीं होगा तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा. सनसेट हमें लाइट की वजह से दिखाई देता है, सनराइज लाइट की वजह से दिखाई देता है, रेनबो लाइट की वजह से दिखते हैं. जो कुछ आपके आसपास होगा वो सब आपको लाइट की वजह से दिखाई देगा. अगर लाइट नहीं होगा आप कुछ भी नहीं देख पाओगे, कुछ भी नहीं. सो लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. It is only because of the light that we can see the lush green vegetation, colorful flowers, deep blue skies in the day, shining stars in the dark night, in the beautiful world around us. और क्या क्या देख सकते हैं? हरा भरा जंगल, lush green vegetation, as well as colorful flowers you can see because of the light. If there is no light, you cannot see anything. रात के अंधेरे में आपको कुछ नहीं दिखाई देगा. अगर लाइट नहीं होगा, किसी भी तरह का लाइट नहीं होगा तो आप कुछ नहीं देख पाओगे. So that is why light is important. दूर के तारे, रात में आकाश में हमें तारे दिखाई पड़ते हैं, चांदनी दिखाई पड़ती है. ये सभी because of the light we can see. If there is no light, we cannot see anything. So that is why light is very important to us.
We can see the man-made objects in our surrounding as well. Light is actually electromagnetic radiation which cause the sensation of vision. Light क्या है? लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इलेक्ट्रॉन्स और मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन्स और मैग्नेट का रेडिएशन, इसे हम लाइट कहते हैं. इसके बारे में हम जानकारी और लेंगे अगले आने वाले स्टैंडर्ड्स में. आप बहुत इसके बारे में सीखने वाले हो, इसीलिए इस साल सिर्फ आप डेफिनेशन ध्यान रखो. लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. वेरी सिंपल डेफिनेशन इज देयर. Light reflects differently from the various surfaces around us. We have already learned that reflection from smooth surface, flat surface is regular reflection, while rough surface reflects light irregularly. We know that there is two types of surfaces. If there is very plain surface, there is very smooth surface, the reflections are regular. And if there is a rough surface, the reflection is not regular, it is irregular. It's are two types of reflection, regular reflection as well as irregular reflection. Regular reflection is happen on smooth surface, irregular reflection is happen on the rough surfaces. So, it is the primary knowledge about that chapter, reflection, light, types of reflection. In the next part, we are talking on the mirror. So, what is mirror? Mirror. So first of all we know about the mirrors. आप सभी को पता है कि मिरर्स यानी आईना हम सभी को अच्छा लगता है. पहले लड़कियों को अच्छा लगता था, अब लड़कों को भी अच्छा लगता है क्योंकि सजना संवरना सबको अच्छा लगता है. So that is why we know about the history of the mirror. सबसे पहला मिरर किसने इजाद किया था? Who is the founder of mirror? So there is an introduction of a scientist. The German scientist Justus von Liebig coated the plain surface of the piece of ordinary glass with silver metal and made first mirror. Such as mirror is called as silver glass mirror. A scientist named Justus von Liebig, who is the founder of mirror. He can firstly made mirror, and this mirror is called as silver glass mirror because he coated one surface of the mirror by silver metal. So silver glass mirror he can made, and the founder of the mirror is Justus von Liebig. Remember that name, it is very important to you. So what is mirror? There is a definition. A surface which reflects light and create clear image is called as mirror. A surface which reflect light, जो सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, जो सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है और आपकी क्लियर इमेज बना सकता है, उसे हम मिरर कहते हैं. अ सरफेस विच रिफ्लेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, एज वेल एज अ सरफेस क्रिएट अ क्लियर इमेज बना सकता है, ऐसे सरफेस को हम मिरर कहते हैं. सो देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ मिरर. फर्स्ट इज कॉल्ड एज प्लेन मिरर. प्लेन मिरर जो हम हमारे घरों में यूज करते हैं उसे हम प्लेन मिरर कहते हैं. सो घरों में जो मिरर यूज होते हैं उन मिरर्स को हम प्लेन मिरर कहते हैं. एंड स्फीयरिकल मिरर, सो इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द मिरर, स्फीयरिकल मिरर. इसके बारे में हम आज इस चैप्टर में डिटेल में सीखने वाले हैं. स्फीयरिकल मिरर, उसका नाम ही है स्फीयर है गोल मिरर, गोलाकार मिरर. स्फीयरिकल मिरर उसके दो टाइप्स है स्फीयरिकल मिरर में भी. सो कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव वो हम अगले वीडियोस में सीखने वाले हैं. इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? प्लेन मिरर. सो व्हाट इज प्लेन मिरर? सो प्लेन मिरर आर यूज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज इन आवर डे टू डे लाइफ. अ मिरर इज मेड बाय कोटिंग the back surface of a flat and smooth glass piece with a thin reflecting film of aluminium or silver to protect this reflecting film and to make the side opaque. Another coat of substance like lead oxide is given over it. So what is plane mirror? There is a definition of plane mirror. A mirror is made by coating the back surface of a flat and smooth glass piece with a thin reflecting film of aluminium or silver. Plane mirror क्या है? There is a smooth surface, very smooth surface of a glass piece.
very smooth surface of a glass piece. One side is opaque, back side is opaque and front side is plain. मिरर, प्लेन मिरर क्या है? तो एक कांच का टुकड़ा है, उस कांच के टुकड़े पे उसकी बैक साइड जो होती है, पिछली साइड जो होती है, वो कोट की होती है, और वो कोट जो होता है वो होता है फिल्म ऑफ एल्यूमिनियम और सिल्वर। एल्यूमिनियम या सिल्वर की कोटिंग उसके पीछे के साइड में दी होती है। सामने वाला सरफेस कांच का टुकड़ा, पीछे वाले सरफेस को ओपेक किया जाता है, उसे पूरी तरह से ओपेक किया जाता है। जब लाइट रेज सामने वाले टुकड़े पर गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर वो ओपेक नहीं होगा, वो ट्रांसपेरेंट होगा, तो लाइट रेज के अंदर जाएगी, इधर से निकल जाएगी, आपको इमेज नहीं दिखाई देगी। लेकिन वो ट्रांसपेरेंट नहीं, ओपेक होता है, यानी कि पिछली साइड जो बैक साइड जो होती है, वो बैक साइड को हम कोट करते हैं। और कोट भी किसी ही कलर से कोट नहीं कर सकते आप, उसे कोट करने के लिए सिर्फ एल्यूमिनियम और सिल्वर की कोटिंग देते हैं, एल्यूमिनियम और सिल्वर की फिल्म की कोटिंग उसे देते हैं। सो व्हाट इज प्लेन मिरर? प्लेन मिरर इज अ सिंपल ग्लास, simple surface of a glass. It is a piece of a glass. One side is opaque and this opaque side is opaque by film of aluminium or silver, and made a mirror is called as plane mirror. And these types of mirror we can use in our day-to-day life in all household work. हमारे घरों में जो मिरर लगाए होते हैं उसे हम प्लेन मिरर कहते हैं। अब इस चैप्टर का शुरुआत बहुत ही आसान है, आपको पता चल गया कि लाइट क्या है, मिरर क्या है, मिरर के टाइप्स कौन से हैं, प्लेन मिरर किसे कहते हैं। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका, प्लेन मिरर के कुछ लॉज आपको बोर्ड के ऊपर दिखाई देंगे। 1, 2 and 3, देयर आर 3 लॉज ऑफ प्लेन मिरर। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको समझना है। इतना आसान है ये चैप्टर कि आपने अगर लॉज समझ लिया, उसकी डायग्राम अगर आपने फिट आपके दिमाग में बैठा ली, तो पूरा चैप्टर बहुत आसान है। अब देखो पेज नंबर 116, फर्स्ट पैराग्राफ। We see a clear image of ourselves when we stand in front of a mirror in our house. हमें पता है अगर हम आईने के सामने खड़े रहते हैं तो हमारी जैसे कि वैसी इमेज आपको आईने में दिखाई देती है। अगर मैं आईने के सामने खड़ा हूं तो जैसा मैं दिखता हूं वैसा ही मैं आईने में दिखूंगा। So why does this happen? Because of the reflection of light. ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। To understand how an image is formed in the mirror, let us first consider an image formed by a point source. Light rays travel in all directions from such source. Several of these rays falls on the mirror, get reflected and reach to our eyes. Due to reflection, they appear to be coming from the point behind the mirror. That point is the image of the point source. दो तरह से हम इमेज देखेंगे। पहला है पॉइंट सोर्स, एक छोटे से बिंदु में से हम इमेज देखने की कल्पना करते हैं। एक छोटा सा बिंदु, एक छोटा सा पॉइंट, और एक है एक्सटेंडेड सोर्स, पॉइंट सोर्स एंड एक्सटेंडेड सोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग ऑन द पॉइंट सोर्स। there is a diagram, first diagram 11.2a. in this diagram, if there is a object, अगर यहां पर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट होगा, if there is a object, if there is a point, कोई भी लाइट रेज अगर इस पॉइंट के ऊपर गिरता है तो इससे इंसिडेंट रे बाहर निकलते हैं। इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे सीधे जाएंगे, ये मिरर है, सो इट इज कॉल्ड एज M1 M2, इट इज कॉल्ड आल्सो मिरर। ये मिरर है, इसे हम प्लेन मिरर कहेंगे। सो प्लेन मिरर के ऊपर अगर कोई भी लाइट रेज गिरता है, ये लाइट रेज इंसिडेंट रे ये इस तरह से जा रहा है और सीधा मिरर के ऊपर अगर गिरता है तो मिरर में से एक रे बाहर निकलता है, उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। दिस रिफ्लेक्टेड रे गोज बाय दिस डायरेक्शन, सीधा जाएगा, उसके ऊपर कोई भी आपको चेंजेस नहीं दिखाई देंगे। और ये जो पॉइंट है इसकी आपको इमेज दिखाई देगी इस मिरर के अंदर यहां पर। सो इंसिडेंट रे गॉट रिफ्लेक्टेड बाय रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे गॉट रिफ्लेक्टेड बाय रिफ्लेक्टेड रे। सो इसे हम अगर ऑब्जेक्ट कहेंगे तो यहां पर जो इमेज बनेगी उसे हम O1 नाम देंगे। सो ऑब्जेक्ट को अगर O नाम दिया तो यहां पर जो इमेज बनेगी उसे हम O1 नाम दे सकते हैं। सो इफ light is reflected all over the sides,
every direction, everywhere. So if the light rays falls on that object, the incident ray is passing perpendicular to the mirror and then it is reflected back that direction. So in this way the image of object O is just like that point. So it is in the point source. और आगे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, देखो, as a figure 11.2a shows light rays falling perpendicularly on the mirror are reflected back in the perpendicular direction. अभी यहाँ पर क्या दिखाया गया है, देखो, अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इसे हम O नाम देंगे, इस ऑब्जेक्ट में से इंसिडेंट रे बाहर निकला, ये इस तरह से इस मिरर तक जाएगा। अब ये मिरर तो प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस के ऊपर स्मूथ रिफ्लेक्शन होता है, यहां से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर जा रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी परपेंडिकुलर ही आएगा। इंसिडेंट रे अगर परपेंडिकुलर जाएगा तो रिफ्लेक्टेड रे भी परपेंडिकुलर ही आएगा। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपने रखा है तो उसकी इमेज आपको उस मिरर में यहां पर दिखाई देगी, एग्जैक्टली सेम एज द साइड, सीधा आपको उस मिरर में उसकी इमेज दिखाई देगी। सो इट इज द फर्स्ट लॉ। इफ इंसिडेंट रे आर परपेंडिकुलर टू द मिरर, रिफ्लेक्टेड रे आल्सो परपेंडिकुलर टू द मिरर। सो इन दिस वे देयर इज अ फर्स्ट लॉ, वेरी इजी लॉ। इसमें कोई समझने की ज्यादा बात नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो उसकी इमेज आपको आईने में दिखाई देगी। जितना बड़ा वो ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज आपको दिखाई देगी, ज्यादा बड़ी नहीं दिखाई देगी। अगर आप आईने के सामने खड़े रहते हो, आप जितनी हाइट के हो उतनी हाइट आपको आईने में दिखाई देगी, कुछ बड़ा नहीं दिखाई देगा या छोटा नहीं दिखाई देगा अगर प्लेन मिरर होगा तो। इफ स्फीरिकल मिरर अगर आप यूज करोगे तो उसके अलग अलग फेनोमेना होता है, अलग अलग मैजिक होते हैं, वो हम आगे सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन प्लेन मिरर में अगर मैंने ये चौक, इतना साइज का चौक अगर पकड़ा तो वो मिरर में मुझे इतना ही साइज का दिखाई देगा, because the incident ray is perpendicular to the mirror and reflected ray are also perpendicular to the mirror. Very easy law. Second law, दूसरा लॉ समझेंगे। क्या है दूसरा लॉ? देखो, there is a second diagram 11.2b. there is a B diagram on the page number 116. See, in the figure 11.2b shows a point source O in the front of the plane mirror M1 M2. देयर इज अ पॉइंट सोर्स, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, ये देखो, ये पॉइंट का ऑब्जेक्ट ये रखा गया है इस प्लेन मिरर के ऊपर। ये प्लेन मिरर के सामने एग्जैक्ट आपने एक आधा ऑब्जेक्ट रख दिया। सो इट इज अ प्लेन मिरर कॉल्ड एज M1 M2. दिस इज प्लेन मिरर, देयर इज ऑब्जेक्ट O, M1 M2 मिरर है, O ये ऑब्जेक्ट है। Incident ray OR1 and OR2 get reflected according to the laws of reflection along the path R1S1 and R2S2 respectively. अभी यहां से एक इंसिडेंट रे बाहर जा रहा है, दिस इज इंसिडेंट रे। इस इंसिडेंट रे का नाम दिया है OR1, OR1 ये वाला OR1। देखो यहां पर एक पॉइंट R1, देयर इज अ पॉइंट R1 एंड देयर इज पॉइंट R2, OR1 OR2. so there is two incident ray hitting to the surface of the mirror. ये मिरर के ऊपर यहां पर हिट किए, हमें रिफ्लेक्शन के नियम पता है। सो स्मूथ सरफेस है, ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगे यहां से। सो R1S1 इसे हम नाम देंगे R1S1, ये देखो R1S1 एंड R2S2, these are reflected. So incident ray, reflected ray, incident ray, reflected ray. यहां से हम उससे देख रहे हैं, ये पॉइंट E है, यहां पर हम देख रहे हैं, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, यहां पर मिरर है, इस कॉर्नर से आप देख रहे हो मिरर में, लेकिन देखना क्या है, ये ऑब्जेक्ट देखना है। यानी कि चेयर, ये चेयर रखी है यहां पर, मैं यहां पर खड़ा हूं, ये आईना है, मैं चेयर की तरफ नहीं देख रहा हूं, मैं आईने की तरफ देख रहा हूं। मैं आईने में चेयर की इमेज देख रहा हूं, मुझे आईने में चेयर देखनी है, मैं डायरेक्टली चेयर नहीं देखूंगा, मैं आईने में चेयर देखूंगा।
सिंपल है। ये मैं खड़ा हूं, ये चेयर है, ये आईना है। आईने में मैं चेयर की इमेज देखूंगा। कहां देखनी है मुझे इमेज? आईने में देखनी है। सो इसीलिए इस चेयर के ऊपर से रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे बाहर निकले, इस मिरर के ऊपर इस पॉइंट पर हिट किया, यहां से रिफ्लेक्टेड रे बाहर निकला। ये यहां से इंसिडेंट रे निकला, हिट किया, ये रिफ्लेक्टेड रे बाहर निकला। सो इंसिडेंट रे OR1, OR2 got reflected by R1 S1, R2 S2. So in this way they are reflected to my eyes. Here is an eye, here I am standing, here is the object, and here is image. Sorry, here is mirror, and image of that object is into the mirror. Mirror में कहाँ दिखाई देगी? देखो, when these reflected rays are extended behind the mirror, they meet at O1. When we see from E, these rays appear to be coming from O1. These rays starting from O also get reflected and appear to be coming from O1. Thus, point O1 is the image of point O. अभी देखो क्या हुआ, मैं यहां पर खड़ा हूं, इंसिडेंट रे निकला, रिफ्लेक्ट हुआ, इंसिडेंट रे निकला, रिफ्लेक्ट हुआ। मैं यहां खड़ा हूं, मैं इस ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं देख रहा हूं। मैं कहां देख रहा हूं? मैं आईने में देख रहा हूं। आईने में मुझे कहां दिखाई देगा? अगर इस रिफ्लेक्टेड रे को आप पीछे एक्सटेंड करोगे, इस तरह से अगर एक्सटेंड कर दिया इसे, तो यहां पर एक इमेज आपको दिखाई देगी और आपको ऐसा लगेगा कि चेयर यहां पर है, लेकिन ये एक्चुअल चेयर है क्या? नहीं, इट इज द इमेज। काय की इमेज है? ये O पॉइंट की। सो O1 इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट O। बिकॉज आप यहां पर खड़े हो, आप आईने की तरफ देख रहे हो, ऑब्जेक्ट यहां पर है, आप ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहे हो। आपको लगेगा ऐसा कि रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट से आ रहा है। सो ये पॉइंट जो होता है उसे हम इमेज कहते हैं। इट इज वेरी सिंपल लॉ बिहाइंड इट। ये लॉ यहां पर देखो क्या है, द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट एक्चुअली मीट। ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये कभी भी मीट नहीं करेंगे। ये देखो, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, दीज आर द रिफ्लेक्टेड रे। आप जितना लेके जाओगे इसे, ये सीधा जाएगा, इसे हम समांतर रेखा कहते हैं। ये कभी मिलती नहीं है। रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट मीट एक्चुअली, वो कभी भी नहीं मिलेगी रिफ्लेक्टेड रे। हेंस सच एन इमेज इज कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज। अभी ये जो आपको दिखाई देगी इमेज, ये एक्चुअल है क्या? बिल्कुल नहीं, इट इज अ वर्चुअल इमेज। आपने एक्चुअल चेयर मिरर के अंदर होती है क्या? बिल्कुल नहीं। मिरर चेयर कहां होती है? बाहर होती है। सो इट इज अ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल, ये एक्चुअल नहीं है, आभासी है। ये एक्चुअल नहीं दिखाई देगी, आप उसे टच नहीं कर सकते हो। अगर आप मिरर में टच करने का ट्राई करोगे, मिरर में से चेयर निकालने का ट्राई करोगे, होगा नहीं, बिकॉज इट इज नॉट एक्चुअल, इट इज वर्चुअल, आभासी है, एक्चुअल नहीं है। The perpendicular distance of the image is from the mirror is equal to the perpendicular distance of the source from the mirror. अभी क्या होगा देखो, अगर समझो बात को, ये मिरर है, इस O पॉइंट से M1 पॉइंट तक का डिस्टेंस अगर 5 मीटर होगा, 5 मीटर होगा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O टू पॉइंट M1 अगर 5 मीटर होगा, तो मिरर के अंदर आपको जो इमेज दिखाई देगी उसका डिस्टेंस भी 5 मीटर होगा। यानी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर कहां से लेना है? फ्रॉम द मिरर। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सोर्स फ्रॉम द मिरर। ये सोर्स है, यानी पॉइंट O है, पॉइंट O से मिरर तक का अंतर अगर 5 मीटर होगा, तो मिरर से इमेज तक का, यानी कि मिरर के अंदर आपको इमेज कहां दिखाई देगी? 5 मीटर दूर। यानी कि मैं मिरर के सामने खड़ा हूं, अगर मिरर के सामने मैं खड़ा रहने से अगर मेरे और मिरर के बीच में 5 मीटर का अंतर है, तो मिरर के अंदर भी मुझे वैसा ही दिखाई देगा। वो मिरर के अंदर मेरी जो इमेज है वो भी मुझे 5 मीटर दूर ही दिखाई देगी। सो इट इज द लॉ, वेरी सिंपल लॉ। देयर इज 2 लॉज आर देयर। फर्स्ट लॉ, incident ray and reflected ray are perpendicular. Second law, the reflected ray are not meet actually, these images are called as virtual.
the perpendicular distance of image is also same to the perpendicular distance of the source. ये दो लॉ हमने समझ ली. अभी प्लेन मिरर का तीसरा लॉ है, थर्ड लॉ इज देयर. देखो आगे पढ़ते हैं, पेज नंबर 116, पैराग्राफ नंबर 4. If we use an extended source instead of point source, the image is formed of every point of the source, thereby forming an extended image of the whole source. अभी ये दोनों भी डायग्राम में हमने देखा कि एक छोटा सा पॉइंट है, यानी कि एक पॉइंट सोर्स की हम इमेज देख रहे हैं. यहां पर भी एक छोटा पॉइंट था, यहां पर भी एक छोटा पॉइंट था. देयर इज अ पॉइंट सोर्स इमेज. बट इफ वी आर टेकन एक्सटेंडेड सोर्स, अगर हमने एक्सटेंडेड सोर्स लिया, तो क्या होगा? दिस इज द डायग्राम 11.2c. अब इस डायग्राम को समझेंगे. एक्सटेंडेड सोर्स है, एक पेंसिल ली है, यहां पर ये मिरर है, ये पेंसिल है, और मिरर के अंदर की ये इमेज है. क्या कहते हैं समझो. As shown in the figure 11.2c, an extended source PQ is kept in front of M1, M2. ये PQ है, M1, M2 के सामने रख दिया. इस पेंसिल को मिरर के सामने आपने रख दिया. क्या होता है? The image of P and Q are formed at P1, Q1. अब ये पॉइंट है P, ये पॉइंट P. इस पॉइंट P की इमेज बराबर यहां पर तैयार हो गया. P पॉइंट पे ये Q पॉइंट है, इस Q पॉइंट की इमेज ऑल्सो देयर इज यहां पर Q1 पर तैयार हो गई. यानी P पॉइंट की इमेज P1 पर तैयार हो गई, Q पॉइंट की इमेज Q1 पर तैयार हो गई. आगे देखो. Similarly, image of all point between P and Q are formed between P1 and Q1, resulting in the image P1 Q1 of the entire extended source. अभी क्या होता है देखो, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P1 है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट Q1 है. अब इस P पॉइंट से Q पॉइंट तक जितने भी पॉइंट के ऊपर लाइट पड़ेगा सभी रिफ्लेक्ट होंगे. देखो ये पेंसिल है, अगर पेंसिल के इस पॉइंट के ऊपर लाइट गिरा, रिफ्लेक्ट होगा, यहां जाएगा. इस पॉइंट के ऊपर गिरा, रिफ्लेक्ट होगा, यहां जाएगा. यहां पर रिफ्लेक्ट होगा जाएगा, यहां पर रिफ्लेक्ट होगा जाएगा. यानी कि P पॉइंट से Q पॉइंट तक हर जगह पर लाइट गिरेगा, और जितने जितने जगह पर लाइट गिरेगा उतने उतने जगह पर रिफ्लेक्शन होगा. और रिफ्लेक्शन की वजह से ये P1 Q1 सॉरी P एंड Q और इधर P1 Q1 आपको इस पेंसिल की पूरी इमेज मिरर में दिखाई देगी. यानी कि अगर मैं खड़ा रहूंगा मिरर के सामने, समझो ये मिरर है और मैं इसके सामने खड़ा हूं, अगर मेरे सर के ऊपर लाइट गिरेगी तो मेरा सर का भाग मिरर में आपको दिखेगा. अगर मेरे पैरों के ऊपर लाइट गिरेगी, पैर दिखेंगे. अगर मेरे आंखों के ऊपर लाइट गिरेगी, आंखें दिखेगी. मेरे शरीर के हर पॉइंट के ऊपर अगर लाइट गिरेगी तो एज इट इज मेरी इमेज उस मिरर में आपको दिखाई देगी. So it is very simple law behind it. The image formed by the plane mirror is of the same size as the source. क्या कहते हैं? जितनी उस सोर्स की साइज होगी उतनी ही साइज का आपको इमेज दिखाई देगा. यानी कि मेरी हाइट है 5 फीट 3 इंच. मिरर में मैं बड़ा दिखूंगा, मिरर में मैं कितना दिखूंगा? 5 फीट 3 इंच. उससे छोटा नहीं दिखूंगा, उससे बड़ा नहीं दिखूंगा. यानी कि जितनी मेरी साइज है उतनी ही मिरर में मुझे दिखाई देगी. दीज आर द 3 लॉज ऑफ मिरर, प्लेन मिरर. सो ये 3 लॉ है प्लेन मिरर के, बहुत ही आसान है. पहला लॉ है इंसिडेंट रे अगर परपेंडिकुलर गिरेगा, रिफ्लेक्टेड रे भी परपेंडिकुलर आएगा. पहला लॉ हो गया. दूसरा लॉ, रिफ्लेक्टेड रे कभी एक्चुअली मीट नहीं होते, कभी एक दूसरे से मिलते नहीं. रिफ्लेक्टेड रे कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते. आगे कहते हैं उसी लॉ में, इससे जो इमेज बनती है उसे वर्चुअल इमेज कहते हैं. तीसरा है उसमें जितना डिस्टेंस सोर्स का होगा, उतना ही डिस्टेंस इमेज का होगा. जितना डिस्टेंस सोर्स का मिरर तक होगा उतना ही डिस्टेंस इमेज में आपको दिखाई देगा. अगर 5 मीटर सोर्स अगर दूर है मिरर से तो मिरर के अंदर भी आपको वैसा ही दिखाई देगा, वो 5 मीटर दूर है. यानी कि मिरर वहां पर है, मैं यहां पर हूं. अगर मेरे और मिरर के बीच में 5 मीटर का डिस्टेंस है
तो मिरर के अंदर मेरी जो इमेज दिखेगी वो भी 5 मीटर दूर दिखेगी, आपको उस मिरर से 5 मीटर दूर दिखेगी, अंदर तक दिखेगी। तीसरा लॉ है, जितनी साइज, अगर एक्सटेंडेड सोर्स लिया, ये 2 पॉइंट सोर्स, ये एक्सटेंडेड सोर्स में उस ऑब्जेक्ट के हर एक पॉइंट के ऊपर लाइट गिरेगा, और जितने जितने पॉइंट के ऊपर लाइट गिरेगा वो सभी एज इट इज आपको मिरर में दिखाई देगी। जितनी ऑब्जेक्ट की साइज होगी उतनी ही साइज इमेज की होगी, ऑब्जेक्ट की जितनी साइज होगी उतनी ही साइज आपको इमेज की मिरर में दिखाई देगी। बहुत ही आसान 3 लॉ है, एक बार आपने उसे टेक्स्ट बुक में से पढ़ लेना, और ये जो सभी पॉइंट्स है, ये सभी पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लेना। पेज नंबर 115 एंड 116 ये हमने इस वीडियो में देखा। बहुत ही आसान वीडियो होने वाले हैं। अभी प्लेन मिरर में आपको इतना ही बस ध्यान में रखना है, पूरे 2 पेज के ऊपर बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। जो फाउंडर है मिरर का उसके बारे में आपने ध्यान में रखना। बहुत ही आसान चैप्टर है, स्टेप बाय स्टेप हम इसे समझेंगे। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो 1-2 बार इस वीडियो को शांति से देखना, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, लेकिन अगर आपने इसे एक बार समझ में लिया तो ये चैप्टर बहुत ही आसान होने वाला है। इसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड आगे 10th क्लास में आपको सेम चैप्टर है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, दोनों में बेसिक डिस्टेंस है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इसीलिए अगर 9th क्लास का ये चैप्टर आपका अच्छा हो गया तो 10th, 11th, 12th जितने भी बार आपको लाइट का चैप्टर आएगा आप उसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकोगे। इसके ऊपर आपको अभी सॉल्व एग्जांपल्स आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सो दैट इज व्हाई यू कैन टेक अंडर योर रिमेम्बरेंस। सो in this way the video number 1 based on reflection of light is end. My name is Krishna Deshmukh from Rashtramata Jizau English School Chikhli, as well as Creative Education YouTube channel. You can see this video on my channel, like my channel, share my channel, subscribe my channel, and I become science very easy. साइंस बहुत ही आसान बनाता हूँ, बहुत ही साइंस आसान है। जितना आप उसे समझोगे, जितना आप उसे पढ़ोगे, साइंस आपको इंटरेस्टिंग ही लगेगा, कभी भी आप साइंस की वीडियोस में बोर नहीं होगे। सो दैट इज व्हाई वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, चलता है, अभी आगे आने वाले वीडियो कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून विद मी कृष्णा देशमुख बाय क्रिएटिव एजुकेशन चैनल। थैंक यू।